Dr. R.K., one-star director, Shri Chandrasekhar Sharma, Sapphire, and shortly will be Diamond. Big hand for him. Mr. William Titanium, Miss Nargis Masi, Mr. Hitesh, first Titanium from Gurdaspur. Mr. William and Dr. Rafiq, Dr. Rajesh Sharma, Titanium, Mr. Pradeep Sharma, Titanium, Shri Gulshan Chawla, Chairman, Senior Citizen Abhiyan, Punjab, Mr. Vipin Puri, President, Senior Citizen Abhiyan, Amritsar. We are proud that Dr. RK's contribution is that his utmost efforts are quite successful in expanding in four-way therapies and products all over Punjab, Himachal, UP, Bihar, Madhya Pradesh, Uttarakhand, UT, Chandigarh, and Canada, US, and Russia. Sir, your presence here in itself is a great honor for us. We'll cherish the memory of this day for a long time to come. Mr. Dr. R.K., you have cured many patients with chronic diseases. These are, in this way, he is very much quite successful person in this line. Now, I request Mr. William to introduce about magnet water therapy. Mr. William, please come on the stage. ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਰਕੇ ਸਰ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 21-22 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਕਹੇ ਕਾਮਨੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਵਿਲੀਅਮ ਹੈ। ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ MBA ਔਰ MSW वर्किंग शुरू तो ही रही है। मैं WHO ਨਾਲ वर्क ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। मैं आदेश मैडिकल कॉलेज 'ਚ एज अ सुपरिटेंडेंट लास्ट टाइम आया। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਯੂਥ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਬਿਨਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਇੰਗ MBA ਹੈ ਨਾ, MBA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। MBA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਛ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ। ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੌਬ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ। ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜੇ ਜਣੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਸੀ, ਸਰੇ ਉਹ ਸਰੇ ਇਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੀਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਐਜ਼ ਅ EMPLOYE ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਟੋ ਜਨਰੇਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਚ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਏ। ਲਾਈਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, 80% ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, 20% ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਜੁੜੋ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਉਂਦੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ, ਐਗਰੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਥ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਲਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਬਿਨਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋ ਫੜੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੈਬਸ ਬਣਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 2% ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ 1.5% ਇੰਟਰਸਟ ਪਰ ਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ 1.5% ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਵਧੀਆ ਅਰਨਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ $500 ਕਮਾਇਆ ਤੇ $500 ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ $25,000 ਪਰ ਡੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ $50,000 ਡੇਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ $1,00,000 ਡੇਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਬੰਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਡ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਗੋਲ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਗੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਆ। ਰਿਸਰਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਯਾਨੀ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਆ, 100 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਲਿਖਣੇ ਆ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਗੋਲ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ 90% ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ 100 ਦੇ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੌਰੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟ ਵਾਟਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 2030 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 100 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਰੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਪਰਸੈਂਟ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਚਲੀ ਗਈਆਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, 1-2 ਕੰਪਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੀਬ 18 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦਾ ਡੈਮੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟੇਬਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, RO UV, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਲਕਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ। RO UV ਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੱਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮਿਨਰਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ RO UV ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲਕਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਆਇਆ। ਅਲਕਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਕ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ RO UV ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ 3-3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ RO ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੱਗਾ, ਯਾਨੀ ਅਲਕਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਮੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਬੈਗ ਹੈ, ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਸਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਬਹੁਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ, ਖਾਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 150 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਾਰਡ ਤੱਤਵ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਔਨ ਆਫ ਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈੱਡ ਬਟਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮੋਡ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚਾਹੋ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੋਡ ਬਣਾਇਆ M2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, 30 ਫੀਟ 30 ਫੀਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਾਂਜੀ 30 ਫੀਟ, ਹਾਂਜੀ 30 ਫੀਟ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਇਹਦੇ 30 ਫੁੱਟ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਯਾਨੀ 30 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਜਟਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਪੂਰੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੈਗਨੇਟ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਕ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟਲੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਿਖਾਦਾ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ ਪਾਣੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਟਰ। ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਸੂਲ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਤ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਨੇ, ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਓਕੇ ਆ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ 70% ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸੁਸਤੀ ਜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਰੇਅ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਪਰੇਅ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਰ.ਕੇ. ਸਰ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ मेरा नाम नरगिस है एंड मैं गुरदासपुर तो आई हाँ एंड मैं अपनी टीम नाल मिस्टर विलियम जी, मिस्टर रफीक जी एंड माय फादर साहब मिस्टर यशपाल जी दे नाल आई हाँ। एंड मेरा मेन काम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਹਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡੈਮੋ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਣਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਟ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਟ ਇੰਟੀਮੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਐਂਡ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਡੈਮੋ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਗੈਰਾ, ਟੂਥਪੇਸਟ, ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੈਮੋ ਸੈਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੈਮੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟ ਆ, ਇਜ਼ਨ ਇਟ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੀ ਆ। ਬਟ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, कवर कर लिए। मैं डेमो फोहोवे अपॉर्चुनिटी के लिए जो दिया है वो आप लोगों को वाकई बहुत कुछ देने वाला है। तो मैं अपने विषय में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर आर.के. रब्बानी खान, कानपुर से, यूपी उत्तर प्रदेश से। और मैं फोहोवे करीबन 4 साल कंप्लीट हो गया मुझे फोहोवे करते हुए। और आप जैसे कि देख सकते हैं तो फोहोवे में कई रैंक होती है, जिसमें कि सबसे पहला रैंक होता है हमारा, रैंक क्या मतलब एक कार्ड होता है, जैसे कि आपने सुना होगा ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, टाइटेनियम। जो टाइटेनियम कार्ड होता है वो हमारा 3,40,000 रुपये का कार्ड होता है। तो मैंने वो कार्ड पहले कर लिया। फिर उसके बाद मेरी पहली जो रैंक थी वो एमरल्ड की थी, जिसमें कि 15-15 लाख रुपए का बिज़नेस लेफ़्ट और राइट में जो करना होता है वो रैंक मैंने क्रॉस करी। फिर उसी के बाद मेरा दूसरा रैंक था सफ़ायर, सफ़ायर के बाद फिर डायमंड, और डायमंड के बाद मेरा जो रैंक है वो 1 स्टार डायरेक्टर है, और आने वाला जो रैंक होगा 3 स्टार डायरेक्टर होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग बहुत खुश नसीब हैं जो कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है, जिसमें कि जैसे कि अभी नरगिस जी बता रही थी, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को उन्होंने सैनिटरी पैड के बारे में बताया, और मैग्नेट वाटर के बारे में विलियम जी ने भी बताया, जो
जानकारी दी, वाकई बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, जो हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो सामने लाइन से लगे हुए हैं। 2030 तक गवर्नमेंट का एक डाटा है, WHO का डाटा है कि आने वाला जो 2030 होगा वो इस तरीके से होगा कि हर सेक्टर में अलग अलग बिजनेस का एक रेशियो होगा। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें, वेलनेस सेंटर का जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब 2023 और 2024 का जो रेशियो है वो वेलनेस सेंटर में 64% है। मतलब आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे एक बढ़ते कदम आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे पास वेलनेस के जो प्रोडक्ट हैं और कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। जैसे कि हमारे पास 4 इक्विपमेंट हैं। पहला हमारा बीशियम प्रो है, जो कि बीशियम प्रो की बात करें, बहुत से लोगों ने उसको यूज़ भी किया होगा। ब्लड सर्कुलेशन मसाजर, ये 7500 RPM पे चलती है। इसका जो एक राउंड होता है वो 1 मिनट में 7500 बार राउंड करता है। पैर के तलवे से लेके ब्रेन तक आपके ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाता है। आज जैसे कि हम लोग यूरिया, पेस्टिसाइड, फंगसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से 15 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, उनको कमर में दर्द, सियाटिका की प्रॉब्लम, ये क्यों हो रही है? इसका मतलब ब्लड गाढ़ा हो रहा है। तो कोई बचाव नहीं है हमारे पास कि हमें कि अपने खेत में जो है ऑर्गेनिक बोलेंगे, क्या क्या बोएंगे हम, यहाँ तक कि तो हवा तक शुद्ध नहीं मिल रही है हमें। तो हमें बचाव करना पड़ेगा। बचाव के लिए हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था अभी तक जो कि फुहुवे ने हमें दिया। फुहुवे ने हमें ब्लड सर्कुलेशन मसाजर दी। 15 मिनट की थेरेपी में पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो जाता है। 2 घंटे की जो एक्सरसाइज हम लोग रेगुलर करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर 5 किलोमीटर की जो लोग बुजुर्ग लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, 20 की स्पीड से नहीं चल पाते हैं, सिर्फ इस मशीन पे बिना थके, बिना एनर्जी बर्न किए आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फ्लो के साथ पहुंचाएगा और बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं उससे आपको बचाएगा। कैसा लगा आप लोगों को बीशियम का? दूसरी हमारी पोर्टेबल मैजिक डिवाइस है, जिसके बारे में मैं बताऊं कि इसका नाम ही पोर्टेबल मैजिक डिवाइस रखा है। ये एक छोटी सी मशीन है जिसको हम लेके कहीं भी जा सकते हैं और ये जादू की मशीन है। जैसे रास्ते में कभी हम चल रहे हैं, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स चल रहे हैं या कोई बुजुर्ग साथ में है, अचानक से उसका बीपी बढ़ जाए और कोई भी मेडिसिन नहीं है हमारे पास, तो ये डिवाइस है तो बीपी 5 मिनट में कंट्रोल कर देगी आपका, बिना किसी मेडिसिन के। जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो धीरे धीरे नॉर्मल होता ही चलेगा। जब 5 मिनट बाद आप देखेंगे एकदम नॉर्मल हो चुका होगा। कितनी बड़ी चीज़ है कि बिना किसी मेडिसिन के हम बीपी नॉर्मल कर दे रहे हैं। किसी का शुगर हाई हो गया है, उस वक्त हमारे पास मेडिसिन नहीं है, तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से लोग लंबे समय से कार से चल रहे हैं और जब कार से जब उठते हैं तो उठ नहीं पाते हैं, तो पता चला कमर की नस दब गई है। अब उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बस उसी जगह पे हम इलेक्ट्रोपैड को लगाएंगे और 20 से 25 मिनट इसकी थेरेपी लेंगे, एकदम नॉर्मल कर देंगे। जब आप उठेंगे तो आपको फील होगा कि इस मशीन ने जादू कर दिया। मतलब कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी तेज डिस्प्रिंग नहीं काम करती उतना तेज मेडिसिन, ये मैजिक डिवाइस हमारी काम करती है। इतनी पावरफुल है। बहुत सी लेडीज़ें फेशियल के लिए बड़ी शौकीन रहती हैं कि मुझे खूबसूरत दिखना है, मुझे पार्टी में जाना है तो लोग मुझे अट्रैक्शन देखें कि मतलब मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। तो जो हम लोग फेशियल कराते हैं ब्यूटी पार्लर में, तो वहाँ पे जो फेशियल होता है वो देखा होगा आपने, क्रीम से स्किन को इतनी तेज़ी से रफ करा जाता है कि स्किन हमारी घिसने लग जाती है। लेकिन जब हम इसके ग्लव्स पहन के और इसके बॉडी लोशन से जब इसको हल्का हाथ टच करते हैं, तो जैसे ही इसको टच करते हैं तो वैसे ही नेचुरली जो हमारी वेंस होती हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पा रहा था, वो ब्लड सर्कुलेशन उभर के आता है और आपके चेहरे पे रेडनेस आ जाती है बिना किसी मतलब फालतू क्रीम से, जिसकी क्रीमों से आपने देखा होगा स्किनें सिकुड़ जाती हैं। इसको जब आप करेंगे तो इसका आपके चेहरे की सिकुड़न तक खत्म होगी। और जब आप इसको करने के बाद अपने फेस को पानी से सिर्फ नेचुरली धोएंगे तो आपको किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना ग्लोपन लाता है, कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। इस मशीन के अंदर एक लेज़र फंक्शन भी है। जैसे बहुत से लोगों की कान की नसें सूख जाती हैं,
और डॉक्टर बोलता है भाई इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी नसें सूख चुकी हैं। अब बताइए, जब डॉक्टर मना कर रहा है तो फिर कौन सही कर सकता है? कोई है क्या सही करना? ये हमारी फोहवे की जो मैजिक डिवाइस है, वाकई ये डॉक्टर से भी बढ़कर है इस समय प्रेजेंट टाइम में। अगर नसें सूख गई हैं, आप लेजर फंक्शन का आप ट्रीटमेंट लेते रहिए, आपकी जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा है उसको पहुंचाएगा, और जो नसें सूखी हुई हैं उसको एक्टिव कर देगा। कपिंग थेरेपी का नाम सुना है आप लोगों ने, जिसको उर्दू की भाषा में हम लोग हिजामा बोलते हैं। सऊदी में और अरब में वहाँ पे हिजामा का इतना ज़्यादा चलन है, अगर ये डिवाइस अगर वहाँ के लोगों के पास अगर पहुँच जाए तो महीने का कम से कम 10-15 लाख रुपए कमा, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। मैंने अभी कानपुर के अंदर यूपी में 200 रुपये इसका एक कप लगाने का लेता हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट लगाया और 5 मिनट के बाद जब हटाया तो उसके पोर खुल जाते हैं, वो सारी टॉक्सिन को निकाल लेता है। लेकिन हिजामा जो होता है वो कई तरीक़ों से होता है। बहुत से लोग सुई से चुबो के ब्लड को निकालते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर शुगर का कोई पेशेंट है, उसको अगर हमने सुई मार दी तो उसका घाव सही होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते, इसलिए उसमें घातक होता है। तो ये हमारी जो मैजिक डिवाइस है, इसकी जो कपिंग थेरेपी है बिना खून निकाले ही करती है, सिर्फ बॉडी से उसकी गंदगी को बाहर करती है, टॉक्सिन को बाहर करती है। अगर हमारे ब्लड से गंदगी निकल जाए तो हमारा ब्लड तो ऐसे ही पतला हो जाएगा, ब्लड निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये इन्होंने जो टेक्नोलॉजी पे काम किया है, इसको बोलते हैं TCM चिकित्सा, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन बोला जाता है इसको, TCM चिकित्सा के नाम से। ठीक है, कभी अगर आप कोई आपसे पूछता है कि आपने कौन सी पद्धति पे आप काम कर रहे हैं, ये क्या पद्धति है, इसके बारे में बताओ, ये 5000 साल पुरानी पद्धति है, इसको TCM चिकित्सा बोला जाता है शॉर्टकट में। और अगर फुल फॉर्म पूछे तो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे भारत की ही पद्धति है और हमारे भारत में ही इस्तेमाल होता था। लेकिन क्या हुआ, जब लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। पहले क्या होता था 5000 साल पहले, कि जैसे किसी को हार्ट अटैक पड़ा तो वो सुई लेते थे और ऐसे करके मारा उंगली पे और खट से हार्ट अटैक रुक जाता था। तो अब जैसे आप मेरे साथ जैसे विलियन जी बैठे हैं और सब लोग बैठे हैं, तो बोले सर हमें भी बैठा लीजिए, हम भी देखें क्या करते हैं। तो इन्होंने देखा, बोले सुई तो मारना है, हम भी मार लेंगे। तो इन्होंने अपना क्लिनिक खोल लिया, उन्होंने अपना क्लिनिक। तो गलत तरीके से मारने से कई लोगों की मौत होने लगी। तो यहाँ से ये टेक्नोलॉजी को उठा के बाहर फेंक दिया गया। वहाँ पे जब इसकी स्टडी करी गई, इसके बारे में पढ़ाई की गई, तो इन्होंने एक ऐसे सिस्टम निकाला कि बिना सुई मारे ही हम एहसास दिलाएंगे सुई का और नस अपने आप खुल जाएगी। जैसे हमारे इस मैजिक डिवाइस में ग्लव्स हैं दोनों हाथ के, अगर किसी के हाथ में या हार्ट में कहीं पे दर्द है या यहाँ दर्द है, हार्ट के पेशेंट में क्या होता है, या तो यहाँ दर्द होता है या तो इस तरफ दर्द होगा लेफ्ट साइड में, या उसके पीछे साइड में दर्द होगा। तो अगर ये दर्द हो रहा है तो इसको आप मजाक मत समझिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि हो सकता है गैस का हो। अगर गैस का होगा तो आपको जी मचलाएगा, उल्टी आएगी। ठीक है, अगर गैस का नहीं है तो ये पेन आपको अलग से दर्द करेगा। तो उसमें आपको क्या समझना है, एक दिन हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन भी हो रहा है, तीसरे दिन भी हो रहा है और लगातार हो रहा है, तो ये बॉडी हमें इंडिकेट करती है, बॉडी हर चीज़ बताती है कि आपको ये दिक्कत आने वाली है, समझ जाओ। लेकिन समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा कार चलाते हैं ना लोग, कार में डीप वो अंदर हेडलाइट के अंदर जो है डीपर टाइप के बने होते हैं, उसमें एक डीपर होता है ऐसे करके बना होता है, चूरा होता है ऑयल जैसे कि। तो वो अगर वहाँ पे बार बार रेड लाइट आ रही है तो इसका मतलब आपका इंजन ऑयल चू गया पूरा, और अगर आपने उसको चलाया तो इंजन सूख जाएगा, तो गाड़ी वहीं की वहीं बंद हो जाएगी और इंजन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसी तरीके से हार्ट में अगर जब दिक्कत आती है तो ये हार्ट बताता है, इंडिकेट करता है। आपके लीवर में दिक्कत आएगी तो आपको बार बार मचली आएगी, बार बार आपको मोशन होंगे, बहुत सारी समस्याएं आपको इंडिकेट करना चालू करेगा। आप नहीं ध्यान दे रहे तो ये बड़ी बीमारी घातक हो जाती है। आपको क्या लगता है, कैंसर या हार्ट अटैक क्या एक दिन में होता है क्या? बताइए। कल तो एकदम बढ़िया सही 60 व्यक्ति था, आराम से कल बात करके आए, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, अचानक से हार्ट अटैक कैसे पड़ा? सोचते हैं ना लोग, कभी कभी मिलते हैं। अभी जैसे मेरी अभी बात हो रही थी, मनु धवन जो इसमें हमारे साथ फोबे में लगा है,
तो मैं अभी ट्रेन में बैठा हुआ था, तो मैंने उसको तुरंत कॉल लगाया, मनु क्या हाल चाल है? बोला पापा की डेथ हो गई। मैंने बोला क्या हो गया? बोलेगा 3 दिन पहले पापा ऐसे बैठे थे और अचानक से गिर गया, खत्म हो गया। तो मैंने बोला ये तो बहुत दुख की बात है। आजकल हार्ट अटैक एक आम हो गया है, और आप देख भी रहे हैं कि अभी कांटा लगा एक हीरोइन जो थी, कितना अच्छी मतलब फिटनेस बना रखी थी, और उसको जब हार्ट अटैक पड़ सकता है तो हम और आप तो समझ लीजिए पॉइजन खा रहे हैं। हर तरफ से कुछ मिलावट नहीं हम लोगों के लिए। तो मेरा बस आप लोगों से यही कहना है, बिजनेस के साथ साथ अगर हम अपनी हेल्थ को भी लेके चलेंगे, तो अपने फैमिली को हेल्थ देंगे, तो हमारा टाइम जो इधर डॉक्टरों के पास भागने में लगा हुआ है, आज की डेट में कोई ऐसा घर नहीं है जिसके यहाँ आपको सर दर्द की, माइग्रेन की, कमर दर्द की, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे दवाई ना मिले। आज की डेट में हर घर में लोग बीमार हैं। तो बचने का यही उपाय है कि हम नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करें और अच्छी चीज़ों को लोगों को जानकारी दें, यूज़ करें और रिकमेंड करें। अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, जैसे लेडीज़ें हैं, अगर इनको कोई लिपस्टिक अच्छी लग गई, उनकी सहेली ने पूछा कहाँ से लाई, वो तुरंत बता देती है वहाँ से लाई। ऐसा है ना? बताने पे क्या आपको वो दुकानदार पैसा देता है क्या? कोई दुकानदार नहीं देता। अगर मैं किसी से पूछूं यहाँ कौन सा हड्डी वाला डॉक्टर अच्छा है, तो कोई भी बता देगा कि वो डॉक्टर अच्छा है। मैं चला जाऊं और वहाँ मैं अपनी हड्डी जोड़वा लूँ, अगर गलत जोड़ दिया तो मैं आपको गाली दूंगा, अगर सही जोड़ दिया तो आपको वो कोई कमीशन नहीं देगा। देगा क्या? लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करेंगे और अगर हमें अच्छा लग गया और लग रहा है, घर वालों को भी अच्छा लग रहा है, तो अगर हम किसी को बताते हैं तो बताने पे भी हमको पैसा कंपनी देती है। तो इससे अच्छा काम है क्या? अभी तक जो भी प्रोडक्ट हम लोगों ने खरीदे मार्केट से, हमारे पापा ने, हमारे दादा ने जहाँ से खरीदते आए हैं, कभी किसी दुकानदार जिससे आप लगातार खरीद रहे हैं, अगर आज उसके पास जाओ, बोलो भैया सालों से सामान खरीद रहे हैं, ये कोलगेट है, आज एक के साथ एक फ्री दे दो, क्या देगा? क्या नहीं देगा। इसी तरीके से हमारी जो कंपनी है बहुत सारी चीज़ें आपको देगी। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ये लीवर रेडी कैप्सूल लगा हुआ है, ये लीवर से संबंधित कैसी भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की दिक्कत है, उसको ये ख़त्म करता है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। माई हेल्प लोअर हाई कोलेस्ट्रॉल तो अधिकतर लोगों में होता है, उसको ख़त्म करता है। गैलस्टोन को ख़त्म करता है, डायबिटीज़ को मेंटेन रखता है, सपोर्ट अर्थराइटिस। अमूमन जैसे बहुत से लोगों का अर्थराइटिस पता है क्यों होता है? किसी को पता है अर्थराइटिस बीमारी कैसे होती है? कोई बता सकता है क्या? अर्थराइटिस देखा होगा अधिकतर लोगों में जब होती है, जैसे बहुत सी लेडीज़ें रोटी बना रही हैं और पेशाब लग गया, रोकी हुई यार, पूरी रोटी बना के, खाना बना के, खिला के तब बाथरूम में जाएंगे। तो आपका जो ब्लाइडर है ना, ब्लाइडर, यूरिन ब्लाइडर, वो इतना बड़ा बना हुआ है। भगवान ने हर चीज़ इतना मतलब सिस्टम से दिया है कि जैसे ही आपका भरे उसको आप निकाल दीजिए। नहीं निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक आध बूंद लीकेज होगा, अगर लीकेज होगा तो वो बॉडी के अंदर जाएगा। तो लोगों को कभी कभी ऐसा होता है ना, यूरिक एसिड हो जाता है बहुत से लोगों को, फिर यूरिक एसिड का इलाज नहीं कराते हैं तो फिर बाद में होता पता चलता है अर्थराइटिस जैसी बीमारी, हड्डी टेढ़ी होने लगती है, हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपको बचाव करना है तो यूरिन ना रोकें। अगर आपको टॉयलेट लग रहा है तो तुरंत जाइए, क्योंकि जो चीज़ें बनी है निकालने के लिए उसको तुरंत निकालिए, चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, आपका रोकना नहीं है, पहले जाना। तो ये अर्थराइटिस वाले जैसे पेशेंट होते हैं ना, बहुत परेशान हो जाते हैं, इनका ना तो कोई इलाज होता है ना ही ट्रीटमेंट है। तो हमारी ये जो बेंटोंग डिवाइस है ना, जो ये रखी हुई है, ये इतनी पावरफुल डिवाइस है, इसमें आपको न वाइब्रेशन होता है न कुछ होता है। इसकी थेरेपी जब आप लेते हैं और साथ में लीवर रेडी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये महीने भर के अंदर, और साथ में ये जो वाटर डिवाइस जो है ना, इसका पानी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो महीने भर में आपको 90% का आराम दे देती है अर्थराइटिस। समझिए कितनी बड़ी चीज़ है। जबकि एलोपैथ का कोई भी डॉक्टर अर्थराइटिस की कोई भी दवाई आपको दे दे, लेकिन आपको कोई भी आराम नहीं मिलेगा, सिर्फ वो पेन किलर देते हैं। हमारे जस्ट लीवर रेडी के बगल में पावर प्लस कैप्सूल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो पावर प्लस है तो लोगों की धारणा गलत चली जाती है। ये एक्चुअली में
ये जो कैप्सूल है ये सुपर पावर प्लस है। ये इतना पावरफुल प्लस है कि जैसे किसी को बहुत ज़्यादा बुजुर्ग कोई व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, कमजोरी है, तो खाएगा तो उसके शरीर में ताकत है। बहुत से लोग आज की डेट में भारत में ऐसे जेंट्स हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी रहती है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके स्पर्म काउंटिंग की कमी है, तो उनको अगर ये प्रोडक्ट दिया जाए तो उनके स्पर्म काउंटिंग को भी बढ़ाता है। लेडीज़ों को ये प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि उनका हार्मोन्स एक अलग होता है, तो उनके हार्मोन्स में ये काम नहीं करता है। तो कोशिश आप ये करें कि इसको लेडीज़ों को ना दें, जेंट्स इसका इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और ये हमारा शुगर का प्रोडक्ट है जिसका नाम है डायबिट इजी। ये करीबन 11 जड़ी बूटियों से बना हुआ है और सबके एक्सट्रैक्ट पड़े हैं। जैसे जामुन होता है ना, जामुन भी पड़ा है, जामुन की गुठली भी पड़ी है, नीम भी पड़ा है, त्रिफला भी पड़ा है, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हैं जो कि हमारी बॉडी में शुगर को सही नहीं करता है। शुगर को कौन सही करता है, कौन रोकता है? एलोपैथिक। अगर आपका 400 शुगर है, अगर अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो शुगर आपका मेंटेन कर देता है, लेकिन शुगर कभी ख़त्म नहीं करता है। अगर आपको शुगर ख़त्म करना है जड़ से, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करना है परमानेंट, हमेशा आपका इंसुलिन बना के आपका पेनक्रियाज देने लगे, तो ये डायबिटीज ही। और इसकी थेरेपी आप लेंगे, अगर 500 शुगर रहती है तो 1 महीने में उसकी शुगर 120 के अंदर आ जाएगी, इन तीनों चीज़ का इस्तेमाल करने पे। इतना गजब का रिजल्ट है। और अभी इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, कई कंट्री के एक अच्छे रिजल्ट आए हैं जिसमें कि शुगर पे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है। अभी हाल में मेरा क्लिनिक है कानपुर के अंदर, तो मैंने एक व्यक्ति को इसका पानी पिलाया लगातार 3 लीटर। मशीन नहीं ली उसने, लेकिन मैंने बोला बोतल ले आया करो, मैं पानी बना के दूंगा। 3 लीटर पानी पिलाने पे स्टोन उसका सिर्फ पानी से ही बाहर आ गया। 5 mm का था, 5-6 mm। कितनी बड़ी अच्छी चीज़। और मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने जब इस मशीन को जैसे देखा फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे इतना बिलीव है इस कंपनी के प्रोडक्ट पे, मैं एक्चुअली मैं सारे प्रोडक्ट से लाखों रुपए कमा रहा हूँ, तो प्रोडक्ट की ताकत तो मैं जानता हूँ। तो जब कभी कोई कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो सबसे पहले मेरे पास आता है। मैं पैसा नहीं पूछता कितने का है, तुरंत पेमेंट डाला, मंगा लिया। यूपी में सबसे पहले मैंने मंगाई, दूसरे नंबर पे पंजाब के अंदर चंद्रशेखर शर्मा जी ने मंगाई इस मशीन को, जिसका नाम है वेंटल डिवाइस। 2,04,000 रुपये इसकी MRP है, DP रेट है 1,70,000 रुपये, लेकिन अभी कंपनी का ऑफर है तो 1,02,000 रुपये में दे रही है, जिसमें 1,02,000 रुपये तो दे रही है, बाकी 51,000 रुपये आपके $डॉलर में डाल रही है, जिसका आप कोई भी फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं। और एक मेंबरशिप का एक कार्ड बना के दे रही है जो 3,40,000 रुपये का, ये आपको फ्री मिल रहा है। इस डिवाइस को जब आप यूज़ करते हैं और लोगों को कराते हैं, तो ये जैसे अभी इंडोनेशिया में, अभी बेंगलोर में 1,000 रुपये बेंगलोर में इसकी थेरेपी का है, आधे घंटे का। हाँ, पीछे मैडम देखिए वो ले रही हैं वेंटो डिवाइस, और 3-4 रोज से उनको खुद पता चल रहा होगा कितना आराम मिल रहा है, तो बताएंगी वो भी। तो आप समझिए कि 1,000 रुपये एक व्यक्ति से लिया जा रहा है बेंगलोर के अंदर, और इंडोनेशिया में और ये मलेशिया और इधर साइड में $200 है, करीबन 1800-1900 रुपये एक थेरेपी का ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ का अलग सिस्टम में डॉलर है। तो मैंने तो अभी चार्ज 500 रुपये अपने वहाँ पे रखा हुआ है, और आदमी आसानी से क्लिनिक पे कराता हूँ, और घर पे किसी को करता हूँ तो 1,000 रुपये लेता हूँ उसके। तो इसके रिजल्ट बहुत ही यूनिक आ रहे हैं। जैसे एक लेडीज़ के डॉक्टर ने बोला था घुटने चेंज करने के लिए, तो वो उसने मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है, बोली मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो मतलब रुका हो, मतलब हर डॉक्टर को दिखा दिया, जो पीस के जो आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं, यूनानी दवाई बनाते हैं, उनकी भी दवाइयाँ खा के मेरे चेहरे पे सूजन आ गई है, फूल गया चेहरा, लेकिन घुटना किसी ने सही नहीं करा। डॉक्टर बोल रहा है ग्रीस कम हो गई है, इसकी वजह से घुटना का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप इसको इस्तेमाल करिए, और साथ में मैंने कैलमैक्स का दिया, और मैं इसका पानी भर के बोतल 2 लीटर का देता हूँ। तो पहले दिन जब मैंने थेरेपी दी तो अगले दिन उसके बेटे ने मुझे बोला कि आपने ये थेरेपी जब से कराई है तो उनका दर्द में आराम मिल गया, अब दर्द नहीं हो रहा है। तो जो ग्रीस भी जो कम हो रही थी, वो ग्रीस भी ऑटोमेटिक गर्म सिकाई से जो जहाँ चपकी होगी
वो अपने आप डेली होकर उस जगह पे पहुंच जाएगी, जिससे उसको ये प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि ये कैलमेक्स कैप्सूल है ना, ये बहुत ही लाजवाब कैप्सूल है। इसमें जो पड़ा है कैल्शियम और आयरन, कैल्शियम और आयरन किसी भी एलोपैथी की दवाई में एक साथ नहीं मिलेगा आपको, उसका रिएक्शन होता है। इन्होंने ऐसे हाथ से बनाया है नेचुरल से कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसमें जिंक भी पड़ा हुआ है, इसमें सेलेनियम भी पड़ा हुआ है। जैसे जिंक जो होता है ना, बहुत से लोगों को सर में दर्द होता है, आंखों की रोशनी कम होती है, चश्मे लग जाते हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो उसमें जिंक बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सी लोगों की हाइट नहीं बढ़ती, बच्चों की बड़ा परेशान है, तो इसको हम जब देते हैं तो उनकी हाइट गेन करने बढ़ने लगती है। इसमें पड़ा है कैल्शियम, बहुत से लोगों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, खाने से नहीं मिल पाता, बच्चे दूध नहीं पीते हैं, तो अगर हम ये कैप्सूल देते हैं, ये बड़े और छोटे 12 साल के ऊपर के किसी भी एज के लोग ले सकते हैं इसको। इसमें आयरन भी है, इसमें सारी चीज़ें, यस मतलब आपके पेट के अंदर कोई कचरा गंदगी भरी है तो डिटॉक्सिफिकेशन का भी बहुत अच्छा काम करता है। मतलब एक लाजवाब प्रोडक्ट है और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसके। मैंने इस प्रोडक्ट को, जैसे मैं अभी जो यहाँ पे मयूर में ज्योति है, 3 दिन पहले 4 डब्बे मंगाए, चारों डब्बे एक ही दिन में खत्म हो गए। इस तरीके से बिकता है मेरे पास, क्योंकि रिजल्ट मेरे पास बहुत अच्छे हैं। और मैं मतलब खुला मैं बेचता नहीं, मेरी आदत नहीं है। पूरा एक डब्बा, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया तो मैंने 4 डब्बे उसको एक साथ देने हैं, तो उसके रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं। अब 2-2 कैप्सूल देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, और खोल के देंगे तो उसकी जो, इसको खोल के दिया और 1 महीने के अंदर इस डब्बे को नहीं खत्म किया तो बेकार हो जाएगी, क्योंकि इसकी सील खुलने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर तुम इसको इस्तेमाल कर लेना। तो खुला बेचने का कोई मतलब नहीं होता इसको। अगर कोई पेशेंट है तो उसको पूरा एक डब्बा ले और इसको खाए, तब रिजल्ट आएगा। कोई अंग्रेजी दवाई थोड़ी ना कि जैसे हमने आज खा लिया, आराम मिल गया, अब दोबारा नहीं खाना। ये एज ए फूड सप्लीमेंट है। जैसे आप 1 गिलास दूध पीते हैं तो रेगुलर पीते हैं रहिए, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर एक सेब रोज खा रहे हैं खाली पेट तो एक दिन में कुछ नहीं होना, रेगुलर खाइए 2-3 महीने तक, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। उसी तरीके से ये फूड सप्लीमेंट है, बॉडी में कहीं पे भी कोई भी कमी होगी उस कमी को ये पूरा कर देगा। ये हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है। जैसे कि बहुत से लोगों को जिम में प्रोटीन वे, प्रोटीन पी और प्रोटीन सोया, ये तीनों ही चीज़ चाहिए होती है, जो कि हमें खाने से नहीं मिल पा रही है। तो ये प्रोटीन हम जब लेते हैं, और जैसे जिम वाले बच्चे हैं वो भी ले सकते हैं, जो जिम वाले नहीं हैं वो भी ले सकते हैं। 80% प्रोटीन है, और आयुष मंत्रालय से इसको प्रमाण किया गया कि इसमें कोई भी ऐसे चीज़ नहीं डाली गई है जिसका किसी भी जगह पे आपको इसका साइड इफ़ेक्ट पहुंचेगा। आयुष मंत्रालय से प्रमाणित किया गया है, तो इसका मतलब इसमें कुछ ऐसे हब डाले गए हैं जिससे कि आप जो मार्केट का प्रोटीन लेते हैं, उन प्रोटीन के अंदर क्या होता है कि आपके लीवर में जाके जम जाता है। इसमें ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये आयुष मंत्रालय से प्रमाणित है। इसमें आंवला डला हुआ है। आंवले के बारे में कितने लोग सुने हैं कि आंवला फ़ायदा करता है कि नुकसान करता है? आंवला पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है ना, बाल को काला रखता है, आँख की रोशनी बढ़ाता है, विटामिन सी भी होता है उसके अंदर, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ब्रह्मी के बारे में कितने लोगों ने सुना? ब्रह्मी क्या करता है? दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप सोचिए कि एक प्रोटीन के अंदर आंवला भी पड़ा है, ब्रह्मी भी पड़ा है, और सोयाबीन भी पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ कलाया भी पड़ा हुआ है, और जीरा साकी भी पड़ा हुआ है। ये कुछ ऐसे मतलब न्यूट्रिशन है जो इसके अंदर डाले गए हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ डाली गई हैं, जिससे हमारे लीवर में ये चपकेगा नहीं, और पेट को अच्छे से साफ करेगा, भूख अच्छी लगेगी, हमारी शरीर में जैसे चर्बी जहाँ जहाँ जम रही होगी उस चर्बी को काटने का काम करेगा, मसल्स मजबूत होंगे। देखा होगा आप लोग जिम वाले होते हैं तो डॉक्टर जिम का कोच बोलता है कि आपको प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो 6 अंडा सुबह, 6 अंडा शाम बिना जर्दी के खाना है। तो अगर वो नहीं खाना है तो आपको इसको इस्तेमाल करिए, आपकी बॉडी का फैट नहीं बढ़ने देगा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके शरीर में चर्बी को नहीं जमने देगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपने वेट को घटाना है, तो ये हमारा मील रिप्लेसमेंट है। ये बहुत ही यूनिक मील रिप्लेसमेंट है। जैसे कि मेरे यूपी में और नाव में डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरशद हैं, परसों मेरे पास उनका फ़ोन आया, बोले सर मील रिप्लेसमेंट चाहिए। हमने बोला क्यों सर, क्या रिक्वायरमेंट आ रही है क्या? बोले जितने भी पेशेंटों को दिए सब पे रिजल्ट आया, तो इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही है।
तो इसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को लेना होता है। और दोपहर में खाना खाना होता है। खाना खाने के सुबह मॉर्निंग में कुछ भी नहीं लेना है। आपको नाश्ता करना है तो इसी के 1 चम्मच से नाश्ता करिए, आपको भूख नहीं लगेगी पानी पीने में। जिनको एलर्जी हो जाती है उनके लिए, जिनको एलर्जी होती है उनके लिए भी बहुत बेहतरीन काम करता है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको भी हटाता है और आपके वज़न को भी घटाता है। अगर आपने जैसे कंपनी बता रही है, अगर ऐसा आपने 3 महीना किया तो कम से कम 15 से 18 किलो वज़न कम कर सकते हैं, जैसा कंपनी बता रही है। अगर आपको लगता है कि 1 चम्मच पीने से मुझे भूख ज़्यादा लग रही है, तो आप इसका 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम लीजिए। अगर ऐसा फील होता है कि 1 चम्मच से मुझे कोई मतलब नहीं, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसका 2 चम्मच लीजिए सुबह और 2 चम्मच शाम। इसमें बादाम दिख रहा होगा, बादाम और मैंगो फ्लेवर। इसको जब आप पियेंगे तो इसका टेस्ट इतना बेहतरीन है कि पीते ही चले जाएंगे। पीने के बाद आपको लगेगा 1-2 गिलास पानी और पी। 5 डब्बे तो मैं इसको पिया हूँ। मैं इससे पहले आया था तो मेरा शरीर बहुत हैवी था, हो गया था, लेकिन इसको करीबन 5 डब्बे मैंने इसको कंटिन्यू किया, तो इसका रिजल्ट मुझे भी दिखा इसका बहुत अच्छा। और इसको लेना कैसे होता है? पानी में 1 गिलास पानी में इसको मॉर्निंग में, नॉर्मल पानी में 1 चम्मच इसकी पड़ी हुई प्लास्टिक के स्पून 1 चम्मच डालिए और घोल के पी लीजिए। अगर आपको लगता है कि सुबह 7 बजे या 8 बजे आप नाश्ता करते हैं और आपने उस समय लिया और आपको जल्दी भूख लग रही है, तो इसका फिर 2 चम्मच लीजिए इसको। फिर दोपहर में 12 या 1 बजे जो भी आप लंच करते हैं उस बीच में आप खूब जो मर्जी आए खूब खाइए, ठीक है। पेट भर के आपका खाना भी मिल गया आपको 1 दिन का। और रात में जब आपको भूख लगेगी तो आपको इसको लेना है। अब आप समझिए कि अगर आप 16 से 18 घंटे और 20 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएंगे तो शरीर के अंदर जितनी बीमारी है उसको भी ख़त्म करेगी, जो बीमारी है उसको भी ख़त्म करेगी, क्योंकि भूखे रहने से जो हमारी बीमारी के सेल्स हैं उसको वो सेल्स ख़त्म कर देते हैं। उसी तरीके से बॉडी के अंदर ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, वज़न को कम करेगा। मोटापे वाले लोग आज की डेट में बहुत मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिकतर हर घर में लोगों को ये प्रॉब्लम है, लोग मोटे बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उनको पतला करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन मील रिप्लेसमेंट है जिसको हम रिकमेंड कर सकते हैं, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और 100% रिज़ल्ट है। जैसा कंपनी बताए वैसा इसको इस्तेमाल करें। जिनका वेट लॉस है आप 1 बाल्टी से नहाएंगे तो चिकनाहट खत्म हो जाती है उसकी। नेचुरली क्रीम, मतलब मलाई की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने रगड़ के पहले चेक किया उसको कि मैं बोलने से पहले खुद पे तो ट्राई करूँ क्या ऐसा संभव है कि नहीं। लेकिन डव साबुन को जब लगाते हैं आप, 1 बाल्टी नहीं 5 बाल्टी भी अगर आप अपने बदन पे लगाते हैं ना, तो भी आपकी स्किन पे चिकनाहट नहीं जाती। इसका मतलब एक ऐसा केमिकल डाला गया है जो कि आपको दूध के नाम पे, मलाई के नाम पे केमिकल बेचा जा रहा है। उसको यूज़ करने से आपको स्किन कैंसर और बड़ी डिसीज जैसी बीमारी हो रही है। तो हमें बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए हम इस साबुन का इस्तेमाल कराएं। मार्केट से सस्ता भी है और अच्छा भी है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये हमारा पेंटी लाइनर है। बहुत सी महिलाओं को सफ़ेद पानी की बीमारी हो जाती है, लिकोरिया की बीमारी हो जाती है, बहुत सी लेडीज़ों के बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, बहुत से इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिससे बचने के लिए लेडीज़ें डॉक्टरों के चक्कर लगाती हैं और डॉक्टर उनको अच्छे से लूटते रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, उनको ये जानकारी देना है, ये पैड को 1 पीस रेगुलर इस्तेमाल करना है। 1 पीस रेगुलर, इसमें 30 पीस है। इसके अंदर एक किट है, वजीना हेल्थ सेल्फ टेस्ट कार्ड है। इससे हम चेकअप भी कर सकते हैं और पता भी लगा सकते हैं शरीर में क्या इन्फेक्शन है, क्या दिक्कत है। और फिर इसको अगर हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करते करते आपकी लिकोरिया की बीमारी खत्म हो जाएगी, यूट्रस में गांठ है वो भी खत्म हो जाएगी, कोई इन्फेक्शन हो रहा है। अधिकतर महिलाओं में बांझपन की शिकायत बहुत हो रही है। WHO का कहना है, WHO के बारे में तो सभी लोग जानते हैं ना, WHO कह रहा है हर 7 मिनट में एक लेडीज़ की यूट्रस कैंसर की वजह से मौत हो रही है। ये डाटा है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर का। जो गांव देहात की जो लेडीज़ें हैं, जो शर्मा के अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती हैं, उनका तो डाटा लिखा ही नहीं जाता। तो आप सोचिए कितना बड़ा है। हर 7 मिनट में एक लेडीज़ यूट्रस कैंसर की वजह से मर रही है और हर 4 मिनट में एक लेडीज़ को यूट्रस कैंसर हो रहा है। तो हमें बचने के लिए महिलाओं को अगर लिकोरिया जैसी प्रॉब्लम है तो उसको ये पेंटी लाइनर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसके कमर में दर्द है
या उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो भी अगर इसको इस्तेमाल करती है तो इसमें मैग्नेट चिप है, तो उसके दर्द को भी ख़त्म करता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि ये बोलते हैं कि लेडीज़ें इस्तेमाल करती हैं, मैं कहता हूँ लेडीज़ भी इस्तेमाल करें और जेंट्स भी इस्तेमाल करें। तो लोग हंसने लगते हैं, बोलते हैं सर ऐसा कैसे है कि लेडीज़ भी इस्तेमाल करें जेंट्स भी। जैसे बहुत से जेंट्स को बवासीर हो जाती है, बवासीर, फिचकुला या ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप का बाहर निकलता है, तो इसको उसी जगह पे हम लगाते हैं तो उसके इन्फेक्शन को ये ख़त्म कर देता है पूरी तरीके से। डेमो करना है क्या बताएं आपको? सारे प्रोडक्ट हो गए ना सर? बारे में नरगिस जी आपको डेमो दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। इसका प्रैक्टिकली आप डेमो देखिएगा और वाकई एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। जब पीरियड लेडीज़ को आता है तो उसको इसी को ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ जो मार्केट का जो पैड इस्तेमाल करती है, उस पैड को इस्तेमाल करने से एक तो गीलापन रहता है, ठीक है, और हर WHO कहता है कि आधे घंटे में मार्केट वाला पैड को चेंज करना चाहिए, आधे घंटे के अंदर। क्या कोई लेडीज़ आधे घंटे में चेंज करती है क्या? नहीं करती है। तो जब उसको चेंज नहीं करती है तो लेडीज़ की जो जिस नाजुक जगह पे, प्राइवेट पार्ट पे धीरे धीरे वो पैड इस्तेमाल करते समय उसके क्या होता है, घाव टाइप का हो जाता है। तो जब उसके पेट में बच्चा आता है और जब डॉक्टर बोलता है कि दर्द लो, तो वो दर्द नहीं ले पाती, क्योंकि उसको इतना दर्द वहाँ पे होता है उस जगह पे, जिससे वो दर्द नहीं झेल पाती, तो डॉक्टर तुरंत ऑपरेट कर देते। तो इस चीज़ को इस्तेमाल करने से उसकी वो जगह पे इतनी मजबूती आ जाती है कि वो आसानी से दर्द लेती है और नॉर्मल तरीके से बच्चा हो जाता है उसका। कितनी बड़ी चीज़ है। और यूट्रस जो कैंसर जो आज की डेट में हो रहा है, हर लेडीज़ को इस पैड को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस पैड के अंदर जो 5 यूनिक चीज़ डली है, जैसे एक्टिव ऑक्सीजन, एनियन, फार इंफ्रा मैग्नेटिक, नैनो सिल्वर, ये जो चिप के अंदर जो डाला गया है, ये इसलिए डाला गया है, बहुत सी लेडीज़ों का पीरियड रुक जाता है, जैसे इस महीने नहीं आया अगले महीने आ गया, अगले महीने नहीं आया उसके अगले महीने, तो उन लेडीज़ों में क्या होता है, जो ये साइड की जो चर्बी होती है वो निकलने लगती है। तो इस पैड को यूज़ करने से वो चर्बी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इसमें नैनो सिल्वर पड़ा हुआ है, इसके अंदर एनियन पड़ा हुआ है। ये इतना ज़बरदस्त काम करता है कि जैसे कि आप पहाड़ों पे जाते हैं ना, तो कैसा आप फील करते हैं, तो वो चीज़ ये आपको पेड़ों के दर्द और आपको एक वीकनेस जैसी चीज़ को ख़त्म करता है। सबसे ज़्यादा महिलाओं में जब पीरियड की समस्या होती है तो उनके पेड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसको ये ख़त्म करता है। इसमें एक पैड हमारा ये डे है, दूसरा पैड हमारा ये नाइट है, और तीसरा पैड हमारा ये पैंटी लाइनर है। तो पैंटी लाइनर तो हम रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, डे पैड तो पीरियड के वक्त इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी लेडीज़ों को अगर ये पैड छोटा लगता है तो वो हमारा साइज़ 330 mm का ये नाइट वाला है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा था क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुकान से अपने घर की ज़रूरत का सामान खरीद रहे हैं, क्यों ना हम चंद्रशेखर शर्मा जी के यहाँ आके अपना एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करा लें। 6800 रुपये, 6800 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा, जीवन भर 1+1 आपको उसके बाद फ्री मिलने वाला है। और साथ में अगर आप किसी को रिकमेंड कर देते हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन कराता है, तो आपको जीवन भर एक इनकम आना चालू हो जाती है, जो कि एक स्मार्ट इनकम होती है, एक बड़ी इनकम होती है, जिसको आप यहाँ से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं अपनी बात को यहाँ से रोक के पहले एक डेमो दिखाना चाहूँगा, जिसमें नरगिस जी आके पहले आपको इस सैनिटरी पैड का डेमो दिखाएं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे प्लान की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो प्लान में है, और पैसा कैसे कमाना है, किस तरीके से कमाना है, वो हम बताएंगे। लीजिए नरगिस जी। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੀਨੀਅਰਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਵੇਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਡਾਕਟਰ RK ਜੀ ਸਰ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਕੈਂਪ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਮੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਡੈਮੋ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਹੁਣੀ ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਕਮੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। फस्ट ऑफ ऑल मैं एक गल कहांगी, अब लेडीज़ की करदियां, अगर सारी लेडीज़ नूं पीरियड्स आंदे आ ते जदों सानूं पीरियड्स आंदे आ असीं की करदे आ कि एक एक्सट्रा सैनिटरी नैपकिन एक पैड की करदे आ कैरी करदे आ अपने बैग दे विच। मैं एक एग्जाम्पल दिन्नी आ हर जगह ते सर होनी मैनूं सम टाइम कहंदे आ कि अगर मैं ना किते वाली एग्जाम्पल देवां कि अज तो एग्जाम्पल नहीं दित्ती। हुण इत्थे जिन्नी आपां लेडीज़ बैठे असीं अपना पर्स लैके आए, बैग लैके आए आ, आप डेली वॉश नहीं करते इनू, बट नैवर आप की करते हैं रिप्लेस कर दें। अगर साडा पर्स खराब हो गया, गंदा हो गया, आप थ्रो करते हैं, नवा लै लें, बट उन्होंने असी धोना पसंद नहीं करते। बट अपनी बॉडी ते अगर असी कपड़े पाए हैं तो उन्होंने आप की करते हैं, अगर एक बारी पा लिया आप दोबारा वो कपड़ा नहीं पाने। क्यों नहीं पाने? क्योंकि सानू पता है इत्थे की है, पसीना आया होया, बैड बैक्टीरियाज लगे आ, इन्फेक्शन होने दे चांसिस ने। बट जो साडे पर्स की वारी आंदे आ असी ये चीज़ नहीं सोचते। एंड जो असी एक सैनिटरी नैपकिन लैने आ, एंड बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन एवें दे हुंदे आ जिन्हां दी पैकिंग एक साइड तो की हुंदी आ, ओपन हुंदी आ। एंड जो असी वो वाली सैनिटरी नैपकिन नूं अपने बैग दे विच, अपने पर्स दे विच रखदे आ, उही बैग दे विच साडे हैंकी, साडी स्कूटी, साडी गड्डी दी की हुंदी है, साडा मोबाइल हुंदा है, चार्जर हुंदा है, असी उहनूं डेली कढदे आ विच पाने आ। एंड उसी बैग दे विच सैनिटरी नैपकिन है, एंड उस बैग दे विच किन्ने जर्म्स है, किन्ने बैड बैक्टीरिया है। एंड जो सानू सडनली पीरियड्स आ जाते हैं तो असी उस नैपकिन नूं कढ के, पैड नूं कढ के की करते हैं, यूज़ करते हैं। बट वो जिहड़ी एक साइड ओपन हुंदी है उहदे विचों दी की जांदे आ, बैक्टीरिया उहनूं टच हो जाते हैं। एंड दैन जो असी उस पैड नूं यूज़ करते हैं तो साडे बॉडी के सेंसिटिव पार्ट नूं वो पैड आ जिहड़ा साडी बॉडी के कॉन्टैक्ट दे विच आंदा ते सानू इन्फैक्शन होने के चांसिस वध जांदे आ। अज दे टाइम दे विच लेडीज़ दे विच छोटी एज दे विच सुनन नूं बहुत ज़्यादा मिलता, UTI दी इन्फैक्शनस आ गई, बच्चेदानी दे विच रसोली, ओवरी विच रसोली, ये सारिया चीज़ां सुनन नूं मिलदियां। एंड ये चीज़ां आंदियां बट असीं की करदे आं, आपां इन्हां दे देखदे आं एंड असीं ट्रीटमेंट शुरू करदे आं, बट सानूं कॉजेस नहीं पता हुंदा। असीं कुछ मार्केट दे विच मटीरियल इस तरीके दा यूज़ कर रहे हैं जिहदे नाल साडी बॉडी नूं की हुंदा आ, नुकसान हुंदा आ। हुण रैगूलर पैड आ जिहड़ा असीं यूज़ करदे आं, सारे यूज़ करते हैं, बट असी हुण असी इत्थे सारे लीडर बैठे हुए हैं, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि ये की प्रोडक्ट लगे हुए हैं, की कैमिकल है। बट जो असी नॉर्मल लोगों के जाने आप उन्होंने अवेयर करते हैं कि ये पैड है जोड़ा असी इनू की करते हैं, खोल के देखते नहीं है कि ये अंदर मटीरियल की लगा हुआ है। आप ऐड देखते हैं TV दे विच, फोन दे विच ऐड आंदी आ ते एक्ट्रेस एड्स दिंदियां है, असी देखते हैं एक्ट्रेस दे रही ऐड तो कुछ बैटर ही होगा, तो उन्होंने देख के अं प्रभावित हो जाने तो असी वो चीज़ नूं की करते हैं, यूज़ करते हैं, बट असी खुद एक्सपीरियंस नहीं करते कि ये मटीरियल की लगा होंदा है एंड एक किस तरीके नाल होंदा है, किवें बनदे आ, इहदे विच किहड़े-किहड़े कैमिकल पाए जांदे आ, ये रिसाइकल हो के बनदे आ, रिसाइकल हुंदे आ। एंड इहदे विच जिहड़े कैमिकल पाए जांदे आ, जिहड़े पैड का कलर चेंज करते हैं, जिहड़े रैगूलर पैड असीं यूज़ करते हैं, उस कैमिकल का नाम है डाईऑक्सिन, जिहड़ा सब तो वड्डा कारण है सर्विकल कैंसर का। लेडीज़ दे विच, जेंट्स दे विच बहुत घट है कि उन्होंने छोटिया मोटिया समस्यावां आंदियां आ, बट लेडीज़ नूं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी समस्यावां आंदियां रहिंदियां आ। उहदे कॉजेस की हुंदे आ, असीं की करदे आ, मटीरियल की करदे आ, गलत यूज़ करदे आ। हुण फोवे दा इहदा पैड दा सारिਆਂ नूं पता, इहदी बाहरली पैकिंग भी सब तो की है बहुत ज़्यादा सॉलिड है, बट जो असीं रैगूलर पैड यूज़ करदे आ इहदा एक साइड की रहिंदी है, ਉਹ ਇਹ ਬੰਦ नहीं ਹੁੰਦੀ। बट जो असी ਇਹਦਾ ब्रांड ਜਿਹੜਾ फोवे है, ਇਹਦੀ पैकिंग की ਹੁੰਦੀ है, बंद हो जाती है, वापस सील हो जाती है। उसी तरीके नाल ਇਹਦੀ अंदर वाली साइड भी की है, पूरी सील है, पैकिंग की है, सॉलिड है कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ की जाते बैक्टीरिया वगैरह अंदर नहीं जाते। अगर असी अपने पर्स ਦੇ ਵਿੱਚ रख भी रहे हैं तो ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ की है, अगर असी ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ के यूज़ कर रहे हैं तो ਸਾਨੂੰ नुकसान नहीं होता क्योंकि ਇਹਦੀ पैकिंग है एकदम कवर हैगा आ। हुण जो ये गल की जाती है, ये लेयर्स 8 ये लेयर्स ने, 8 लेयर का सैनिटरी नैपकिन बनया होया एंड प्योर कॉटन है एंड एक ये लगी होंगी है मैगनैटिक चिप एंड इस मैगनैटिक चिप दे विच नैनो सिल्वर है
ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਚਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੈਨੋ ਸਿਲਵਰ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੀਟ ਛੱਡਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਹੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿਕਸਅਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ UTI ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸਿਰਿੰਜ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। सीधे चल जाएगा। ओके, उसको पूरा हाँ, मैं इसको करूँ ट्राई। हाँ, हो गया वैसे ही। नहीं ऐसी बात नहीं। फिफ्टी ml पानी है, 50 ml ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 50 ml ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਸਟ 50 ml ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ml ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 20 ml ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾਇਆ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਲਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕਲਰ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨੋਰਮਲ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੈਂ 20 ml ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਐਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਕੇਜ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੀਕੇਜ ਫ੍ਰੀ ਪੈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਤਰ 50 ml ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਉਸ ਪੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚਲਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸ਼ਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਲੇਅਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਫਰਸਟ ਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਓ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੋਹੋਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਚਿਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਡ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਿਪ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚਿਪ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਲਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਲਈ ਕਲਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਡਾਈਆਕਸਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ UTI ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਓਰ ਕਾਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਕਾਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਪੈਡਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਐਂਡ ਇਹਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਇੱਕਦਮ ਸੌਫਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਫਰਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਬਰੀਥੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ 5 ਡੇਜ਼ 7 ਡੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, UTI ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਫਰਸਟ ਲੇਅਰ ਸੌਫਟ ਹੈ ਐਂਡ ਬਰੀਥੇਬਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਰਲਸ ਦੇ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਬਡੋਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੈਨੋ ਸਿਲਵਰ ਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BP ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਚਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪੈਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਈ ਦੀਆਂ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ BP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ RK ਸਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਅਗਰ BP ਘਟ ਗਿਆ ਜਾਂ BP ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਈ ਤੋਂ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, BP ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਲੇਅਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਅਰਸ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਦੀਆਂ, ਚਿਪਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਕਾਟਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਾੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਰੀਥੇਬਲ ਐਂਡ ਪਿਓਰ ਕਾਟਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਅਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘੁਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਾਟਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਟਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਐਂਡ ਬਰੀਥੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੈਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡੀ ਜੈਲ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਨੈਚੁਰਲ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਵੀਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਲੋਵੀਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੇਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੇਅਰਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਨਾਨਾ ਦੇ ਪਲਪ, ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਨਾਨਾ ਦੇ ਪਲਪ ਐਂਡ ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੈਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਦਬਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਡਸ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈਸ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਵੇਸਟ ਬਲੱਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਪੈਡ ਡਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਪਿਓਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਤੇ ਰਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟਸ 15 ਮਿੰਟਸ, ਦੈਨ ਇੰਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕੀ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਲੇਅਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਟਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਲੇਅਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਡਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ WHO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੈਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਗਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੈਡ ਚੇਂਜ ਕਰੇ। 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੈਡ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 48 ਪੈਡ। ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਡ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੈਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੋਸਟਲੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੈਡ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 48 ਪੈਡਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਐਂਡ ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
ਐਂਡ ਪੈਡ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪੈਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਈਆਕਸਿਨ ਵਾਲੇ ਪੈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ UTI ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਰਸੋਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਯੂਟਰਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਯੂਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਯੂਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अच्छा, इन्होंने आप लोगों को समझाया, जोरदार क्लैप होना चाहिए इनके लिए। और ऐसी उम्मीद है मुझे पंजाब से, आप लोगों से, कि जिस तरीके से आपने बोला है तो हर एक लड़की इस तरीके से मंच पे बोले। और जिस दिन आप लोग बोलने लगोगे, मेरा वादा है आपसे कि पंजाब के अंदर जो कैंसर का जो मुहिम हम लोग चला रहे हैं ये 100% सब सेफ हो जाए। और देखिए, पैसा तो और कंपनियां कमा रही हैं एडवर्टाइजमेंट करके, तो अगर हमारे यहाँ के लोग कमाएंगे तो क्या बुरा है क्या? सबको फ़ायदा होगा इसमें। और सभी लोग इस काम को एक जिम्मेदारी लेके काम करें, क्योंकि कोई ना कोई काम तो हमें करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। अगर ये नेक काम और ये अच्छा काम अगर हम करते हैं लोगों की जान बचाने के लिए, तो हम जान तो बचाएंगे, साथ में पैसा और इज्जत दोनों ही कमाएंगे। आप लोगों के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए, जो कि आपने इतना वक्त दिया है यहाँ पे, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझिए। जैसे आज आप आई हैं, क्या नाम है आपका? मरियम जी। तो आपने देखा किस तरीके से इन्होंने डेमो किया, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, इन्होंने भी वीडियो देख के एक बार में और इतना अच्छा बोला। आज मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिल रहा हूँ, मैंने इनको इससे पहले वीडियो में देखा था कि कई जगह इन्होंने डेमो किया है, लेकिन अब फर्स्ट टाइम मैंने सुना। वाकई बहुत ही अच्छा बोला आपने, और इस तरीके से प्रैक्टिस प्रॉपर चालू रखिए। और यूट्यूब के अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी होती हैं जिनमें से कुछ अच्छी अच्छी बातें निकाल के अपने उस चीज़ों को ऐड करते जाइए। कुछ नया होता है तो लोग और अट्रैक्ट होते हैं आपकी बात को सुनने के लिए, क्योंकि ये बीमारियां बढ़ ही रही हैं और घट नहीं रही हैं। और बचने के लिए कोई भी डॉक्टर बताएगा नहीं आपको। डॉक्टर का और ये कंपनी वालों का एक समझौता है, हम बीमारी पैदा करेंगे और तुम ऑपरेशन करो, दोनों ही लोग पैसा कमाएंगे और कमा भी रहे हैं। मैं तो गायनोकल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जच्चा बच्चा जहाँ पे लेडीज डिपार्टमेंट होता है डॉक्टरों का, मैं वहाँ जाके लोगों को, डॉक्टरों को बैठा के दिखाता हूँ, तो उनको पता ही नहीं है वाकई कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि कभी आज तक डॉक्टर ने भी इसका पोस्टमार्टम ही नहीं किया। उनको बस मिला है कि ये पैड को जो है रिकमेंड कर देंगे बस, क्योंकि लेडीजें पहले कपड़ा यूज करती थी, उसके पहले क्या यूज करती थी पता है? उसके पहले गोबर जो होता था ना गाय का, उसका वो पैड बनाती थी। उसके पहले और भी मतलब जो है मोरंग वोरंग सीमेंट ऐसा कुछ बना के इस्तेमाल करती थी। आज भी एक लेडीज मेरे पास आई जो पुरानी थी, तो बोले हम लोग तो गोबर का बनाते हैं तो वही यूज करते हैं, तो इन्फेक्शन ना हो इसलिए करते थे, लेकिन गीलापन तो रहेगा ही रहेगा, इन्फेक्शन तो हो ही। तो ये जो हमें मिला है फोहोवे कंपनी से, बहुत सी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन इस कंपनी ने जो बना के दिया है वो किसी भी कंपनी के पास अभी तक, आने वाले टाइम में किसी भी कंपनी के पास हो जाए वो तो नहीं जानते, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इतनी चीजें नहीं है। जैसे मैं बहुत सी कंपनी के लीडरों के पास जाता हूँ, सोखने की क्षमता मान लेते हैं, ठीक है उनके भी कंपनी के पैड में, लेकिन जो चीजें यूनिक चीज इन्होंने डाली है, जैसे मैंने अभी एक लेडीज को बच्चेदानी में गांठ थी, मुझे उसके हस्बैंड ने नहीं बताया था, मैंने इसको पैड का डेमो दिया। सिर्फ मैं पैड का डेमो देता हूँ और एक पैड दे देता हूँ कि इसको खरीदो और घर ले जाओ। जब लेके गया तो उसकी वाइफ को अच्छा लगा पैड, उसने 1 महीना यूज़ किया, फिर दूसरे महीने लेने आया, फिर दूसरे महीने यूज़ किया, तीसरे महीने एक रिपोर्ट लेके आया। मैंने बोला ये क्या है भाई, बताओ तो सही। बोला ये रिपोर्ट वो है कि आपके पैड के पहले मेरी वाइफ के 3 बच्चेदानी में गांठ थी, जिसको रसोली बोलते हैं हम लोग।
और आज जब मैंने इसको चेक कराया अल्ट्रासाउंड में तो तीनों गांठ खत्म। तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। और आपको इस कंपनी में एक ऐसा मुकाम, एक ऐसी इज्जत मिल जाती है कि जब आप किसी को ये रिकमेंड करते हैं और किसी को फायदा मिलता है तो आपकी इज्जत करने लगता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे डॉक्टर बोलो, खुद ही आपको डॉक्टर बोलने लगेगा कि जो आप रिकमेंड कर रहे हैं ना, एक डॉक्टर भी इतनी अच्छी चीज रिकमेंड नहीं करता है। किसी की शुगर को जड़ से खत्म करने के लिए कोई डॉक्टर दवाई नहीं देता है, वो ऐसी दवाई देता है कि जब तक खाओगे खाते रहो, फिर बाद में दोनों किडनी खराब हो जाएगी और इसके बाद भगवान को जाके प्यार करो। पैसा भी लेगा, जान भी लेगा। यहाँ आपकी जान भी बचेगी, पैसा भी बचेगा, तो दोनों ही चीजें यहाँ बच रही हैं आपकी। क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं शॉर्ट में कुछ चीजें आपको बताऊंगा। जैसे कि कितने लोग नए हैं यहाँ पे, कितने लोग यहाँ पे नए हैं, वैसे हाथ खड़ा करके बताएं आप लोगों को कैसा लगा यहाँ पे। अच्छा लगा। और जैसा कि अभी तक आप लोग जो भी किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या चाहेंगे, इस्तेमाल करेंगे इस प्रोडक्ट का, कंपनी का करना चाहिए। एक बार जरूर इस्तेमाल करिएगा और जब अच्छा लगे तो इसको बार बार इस्तेमाल करिएगा, और जब और अच्छा लगे तो अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बताइए। जब आप बताएंगे तो आप यहाँ से क्या कमाएंगे उसके बारे में भी हम बताएंगे। मार्कर है या मैं बार बार कह रहा हूं ना, ब्रॉन्ज कार्ड। आप किसी भी एक इंटरनेशनल कंपनी में आपको बिजनेस करना है तो वहां 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए आपको रखना पड़ेगा। एक जैसे मान लेते हैं एक छोटी सी आप फ्रेंचाइजी ले लीजिए, पेप्सी की, कोका कोला की लीजिए, तो क्या नॉर्मली आपको 10-20 हजार में क्या फ्रेंचाइजी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। उसी तरीके से जब किसी भी कोई बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में जब आप काम करते हैं, नहीं मिटाने की जरूरत नहीं इसको लगेगा, तो किसी भी बड़ी कंपनी में काम करते हैं वहां लाखों का पैसा आपको देना पड़ता है। यहाँ पे ये जो ब्रॉन्ज कार्ड है इसको सिर्फ 68 रुपए देना है, 6,800 रुपए देने हैं और कंपनी को देने हैं, और जो आपको जरूरत है उस उतने का सामान ले लीजिए। आपका कंपनी में एक रजिस्ट्रेशन हो गया 6,800 में। आपको लगता है कि हमें मंजन अच्छा लग रहा है तो मंजन ले लीजिए, आपको ऐसा लगता है कि सैनिटरी पैड लेना है सैनिटरी पैड, या तो सब मिक्स में जो भी लेना है वो सब ले सकते हैं। 68 रुपए का जब आप सामान लेंगे तो कंपनी आपको 20% का डिस्काउंट देगी। पहले मार्केट से कोई भी सामान लेते हैं तो कंपनी हमें एमआरपी पे देती है, लेकिन यहाँ पे जब कोई सामान लेंगे तो एमआरपी और डीपी होगा। जैसे हमारी कंपनी का ये पेस्ट है, इसकी एमआरपी है 145 रुपए, आपको कितने का पड़ेगा? सॉरी 174 रुपए इसकी एमआरपी है, आपको कितने का पड़ेगा? 145 रुपए का। तो 20% डिस्काउंट हो गया ना। 174 रुपए का पेस्ट 120 रुपए में पड़ा हमको, तो हमें ये फायदा मिला ना 20% का। फिर इसके बाद 68 रुपए हमने एक बार में खर्चा कर दे या धीरे धीरे करके कर दे, कोई आपके ऊपर कंडीशन नहीं है कि 6,800 रुपए तुरंत एक बार संभाल लीजिए। आप अपना रजिस्ट्रेशन फ्री में करा लीजिए, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दीजिए। यहाँ पे ज्योति शर्मा जी बैठती हैं, वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगी, आपको एक कार्ड दे देंगी, जो डिजिटल कार्ड होगा वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। अगर आप वो कार्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे आके दोबारा फिर ले सकते हैं आईडी नंबर, और कार्ड मिल जाएगा आपको। जिस दिन आपका जैसे 500, 1000 रुपए करके जिस दिन आपका 6,800 रुपए जिस दिन हो गया, तो पहला फायदा आपको 20% मिला। अब इसके बाद आपको फायदा क्या मिलेगा? जब कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, एक प्रोडक्ट लेंगे इसके बाद से, तो एक खरीदेंगे और एक आपको फ्री मिलेगा। एक खरीदेंगे एक आपको फ्री मिलेगा। 68 रुपए का कार्ड बन गया। दोबारा आपने परचेस करेंगे तो 145 रुपए देंगे, 2 पेस्ट पड़ेगा। एक पेस्ट कितने का पड़ा? आधा रेट में 70-72 रुपए का पड़ा। मार्केट से तो सस्ता ही है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे सेंसोडाइन पेस्ट आज की डेट में हम बात करें, सबसे अच्छा पेस्ट टीवी में ऐड दे रहा है, 150 रुपए का है, और ये हमारा 72-73 रुपए का पड़ेगा। तो क्या महंगा पड़ेगा क्या? एक अगर हम इस्तेमाल करें इसको और एक किसी को 145 में बेच दें तो हमारा पैसा पूरा निकल जाए, और अगर उसको अच्छा लग गया तो वो रिकमेंड करेगा।
अब इसी तरीके से आपने एक के साथ एक फ्री मिलने लगा, तो ये तो आप यूज करने लगे। अब बहुत से लोग आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली वाले कहीं ना कहीं केमिकल वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिससे कहीं ना कोई बड़ी बीमारी हो रही है। उससे हम बचने के लिए हम उनको बताएंगे और दिखाएंगे कि ये इस्तेमाल करो, तुम तो हमारे परिवार के हो, रिलेशन के हो, पैसा मार्केट में जरूरत है यहाँ दो, तो ये आपको अच्छी चीज मिलने लगेगी। पैसा दिया, सामान लिया, कोई हमारा लेन देन नहीं है, कोई भी आपको कॉलर नहीं पकड़ सकता कि आपने मुझे फंसा दिया। ऐसा कोई करेगा क्या आपके साथ? भाई 145 रुपए आपने दिया और हमसे आपने एक पेस्ट ले लिया, कल आप हमसे आएंगे थोड़ी ना 145 लेने के लिए। तो उसी तरीके से 1+1 कंपनी आपको दे रही है। अब आपने क्या किया, लोगों को आपने बताया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और आपके 2-4 दोस्त ऐसे होंगे जो आपकी बात को तो सुन ही देंगे कि यार तुम यूज कर रहे हो तो लाओ, तुमने यूज किया, लाओ हम भी यूज कर लें एक बार देख के। उनको अच्छा लगा तो उनको भी बोले भैया आप भी रजिस्ट्रेशन करा लो। जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, 1 महीने में आपने 4 लोगों को बोला और चारों लोग आपके साथ ज्वाइन हो गए 6,800 रुपए से। जैसे 1 महीने में आपने मेहनत करी तो आपको ये छोटी सी इनकम कंपनी देगी 1280 और प्लस डायरेक्ट इनकम देगी 512 रुपए। ये आपके अकाउंट में अपने आप आ जाएगा। आपने लोगों को बताना है, वो यहाँ से आके सामान खरीदेंगे, आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ उनको रास्ता दिखा देना, ये फ्रेंचाइजी है, यहाँ पे माल मिलता है, ये चंद्रशेखर शर्मा जी हैं, ये ज्योति बैठती हैं, यहाँ पे आप पेमेंट जमा करो, अपना सामान लो, हमारा लेन देन खत्म, रजिस्ट्रेशन करा दिया, आप अपने लोगों को बताओ। उन्होंने भी अपने लोगों को बताना चालू किए, 4 लोग अपने लोगों को बताना चालू किए। दूसरे महीने में 16 लोग हो गए। 16 लोग जब हो गए तो 2,048 रुपए की आपकी इनकम हो गई दूसरे महीने में। अभी तो आपको लग रहा होगा कि 2,048 रुपए बहुत कम इनकम है। अब आप तीसरे महीने में देखिए 64 लोग हो गए तो 8192 रुपए इनकम हो गई। चौथे महीने में 256 लोग हो गए तो 32,728 हो गई। 5वें महीने में 10,024 लोग हो गए तो 1,31,072 रुपए की हो गई। और छठे महीने में 4,096 लोग हो गए तो 5,24,288 रुपए की ये हमारी इनकम हो गई पूरी। छठे महीने में 7 लाख रुपए हम यहाँ से कमा सकते हैं सिर्फ 68 रुपए की ज्वाइनिंग करके। हम किसी को क्यों अंधेरे में रखें? हम 240 रुपए का पैड क्यों बेचें किसी को? हम उससे बोले 68 रुपए की आईडी लगाओ और ज्वाइन हो जाओ। अब आप तुम्हें एक के साथ एक फ्री मिलेगा। ये 213 रुपए में 2 पैकेट मिलेंगे तुमको। तो एक पैकेट कितने का पड़ा? 106 रुपए 50 पैसे का। तो वो तो यूज करेगी और अपने लोगों को भी बताएगी। ना महंगा बेचो, ना किसी को लोगों को परेशान करो। आप उसको सिस्टम बताओ, चाहे भले वो 68 रुपए इकट्ठा नहीं दे पा रही, थोड़ा थोड़ा करके देगी तो धीरे धीरे करके दे। वो धीरे धीरे करने के बाद आपका बिजनेस हो जाएगा। ये आपका लिखा हुआ है कि आपने पूरे 6 महीने में 100% अगर काम किया तो 7 लाख रुपए की इनकम यहाँ से 6 महीने में कमा सकते हैं। अगर आपका 100% नहीं हुआ, 50% हुआ तो आप 3.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आपने सोचा कि 50% से भी आता हुआ तो 25% हुआ तब भी 1,75,000 रुपए आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं। बस छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा प्लान है। धीरे धीरे जब आपको अच्छे लगने लगेगा तो कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा, भैया मेरे यहाँ तो मशीन की जरूरत है, तो किसी को मशीन दे दिया आपने, उसका अलग पे आउट बनेगा। किसी ने वाटर मशीन ली, उसका अलग पे आउट बनेगा। किसी ने मैजिक डिवाइस ली, उसका अलग पे आउट बनेगा। किसी ने वेंटोंग डिवाइस ली, उसका अलग पे आउट बनेगा। तो लोगों को अच्छा लगा तो एक बड़ा इनकम और जनरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप धीरे धीरे काम करेंगे, फिर इसके बाद कंपनी आपको हर 2 महीने में फॉरेन ट्रिप लेके आएगी। तो टूर के लिए कंपनी कहेगी 5 लाख का बिजनेस लेफ्ट, 5 लाख का बिजनेस राइट करो। 2 महीने 2.5 महीने के अंदर आपने क्या किया, जिन लोगों को लगाया था उनको बताया भैया बिजनेस आया, टूर आया, तो वो भी काम करा, तो आपका बैठे बैठे टूर। फिर फॉरेन घूम के आओ। चंद्रशेखर शर्मा जी इस समय करीबन 80 साल के होने जा रहे हैं। करीबन अभी 3 साल हो गया इनको ज्वाइन हुए, जिसमें कि 1 साल बेचारे तबीयत खराब है इनकी, तो जिसकी वजह से वर्किंग नहीं कर पाए। 2 साल में इन्होंने जो काम किया, पहला इन्होंने जो टूर किया था, कौन सा टूर था आपका पहला इन्होंने चाइना टूर किया, दूसरा हांगकांग मकाओ टूर, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा चाइना जापान साउथ, चौथा दुबई, और 5वां जो टूर था
चाइना, जापान, साउथ कोरिया, 9 दिन का ट्रिप था शिप के अंदर। 35 करोड़ रुपए कंपनी ने दिए थे सिर्फ क्रूज जहाज को। आप सोचिए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ 35 करोड़ सिर्फ बुक किया था उस पानी वाले जहाज को। 196 कंट्री में हमारी कंपनी काम कर रही है और 2007 से काम कर रही है रशिया के अंदर। तो उसको जब बुक किया था तो पूरे दुनिया से लोग उस जहाज के अंदर थे, फोहोवियंस। बाकी जो वर्कर थे, जो पायलट था वो चलाने वाला अलग था, बाकी सारे जो लोग थे फोहोविक। इंडिया से बहुत सारे लोग गए हमारे यहाँ से। तो अब इस एज में जब ये इतना सब कुछ कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? नरगिस जी क्यों नहीं कर सकती? आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल मरियम जी कर सकती हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप लोग हिम्मत ना हारो, क्योंकि इसमें बताने को है क्या। साबुन पेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को बताओ भैया हमारे यहाँ इस्तेमाल और अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा लग रहा है तो रजिस्ट्रेशन करा लो। अपने भी 2-4 लोगों को बता दो। क्या इसमें कोई कठिनाई है? क्या आपका कुछ जाएगा इसमें? अगर माल बिका तो 50-50% का मार्जिन, नहीं बिका तो कंपनी का नुकसान, आपका कोई नुकसान नहीं। क्योंकि अगर कोई भी फैक्ट्री अगर आप खोलते हैं ना, तो फैक्ट्री बनाने के लिए पहले तो जमीन हमारे पास होनी चाहिए, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करें, फिर उसमें हम वर्कर लगाएं, फिर उसमें गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सारा सिस्टम, फिर असेसमेंट, फिर अकाउंटेंट, सारी चीजें जोड़नी पड़ती हैं। ये माल हमने लिया और बेचा और पैसा मिल गया, क्या हमारा जेब से गया? बताइए, है बढ़िया चीज? नहीं मशीन बेच पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आप वाटर मशीन बेच पा रहे हैं, कोई बात नहीं। पहले छोटे प्रोडक्ट आप लोगों को दो, जब ये अच्छे लगेंगे लोग पूछेंगे कि और कुछ भी अच्छा प्रोडक्ट आता है। एक बार विश्वास तो बनने दो। आज अगर डाबर च्यवनप्राश की बात करें तो हर इंसान खा जाएगा। क्यों? क्योंकि जड़ी बूटी का बना हुआ है और लोग सालों से उसको खा भी रहे हैं और टीवी में देख भी रहे हैं। विश्वास बनाएगा ना, इसके लिए भी विश्वास बनाना पड़ेगा ना। ये चीज लोग जानते थोड़ी ना। इसको जो लेडीजें आज के डेट में पंजाब की यूज कर रही हैं तो वो तो जान गई, जो नहीं यूज कर रही हैं उनको बताना पड़ेगा। अच्छी चीज को 10 बार बताना पड़ता है, खराब चीज को बताने की जरूरत नहीं है, लोग खुद चल के चले जाते हैं। दारू के लिए लाइन लगाना पड़ता है और नगद पैसा भी देना पड़ता है और वो नुकसान भी करती है और उससे कैंसर भी होता है। दूध के लिए उधार लेते हैं, पूरा महीना लेते हैं और पैसा पूरे महीने के बाद देते हैं, वो जबकि फायदा करता है। उसके लिए दूध वाला समझाता है इसको रोज पिया करो, नहीं समझते लोग। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, जैसे आज मुझे इस चीज के लिए आप लोगों को बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, तो अच्छी चीज वाकई लोगों को समझानी पड़ती है। अगर एक बार समझ में ना आए 10 बार समझाइए, लोग ना करेंगे, फिर भी बाद में जब आप समझा देंगे तो फिर लेना चालू करें। जब गैस सिलेंडर आया था हमारे भारत के अंदर तो कितना विरोध हुआ था उसका। जो पुराने लोग हैं उनको सबको पता होगा कि अरे गैस की रोटी खाएंगे, गैस बनेगी पेट में, सिलेंडर फटेगा, बहुत सारी बातें होती थी। ये तो बम है, बारूद है। आज किस घर में सिलेंडर नहीं है बताइए? आप ढाबे के अंदर भी जाएंगे ना, वहां भी सिलेंडर में ही खाना बनता है, ऐसा है कि नहीं? कंप्यूटर आया, कितना विरोध हुआ उसका। कंप्यूटर से आंखें खराब हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो बाबू लोग कंप्यूटर सीखने के लिए गवर्नमेंट ने एक नियम लागू किया कि बाबुओं को बुलाओ और कंप्यूटर सिखाओ, कंप्यूटर पे काम हो, भाग गए छुट्टी छोड़ के, बोला कि साला मुझे सीखना ही नहीं है कंप्यूटर। वो पता नहीं कौन सी बला समझ रहे थे। बाद में वो जैसे ही आखिरी में आए और मान लो पकड़ गए तो बोले सीखो, सीखना पड़ेगा, तो सीखे। जो सीख गए वो एक अच्छी पोस्ट पे जाके रिटायर हुए और जो नहीं सीखे तो उनकी जिंदगी वैसे की वैसे चलती। तो ये अच्छी चीजें हैं और अच्छी चीज को हमें 10 बार बताना पड़ेगा तो हम बताएंगे। और आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। फर्स्ट ऑल डॉक्टर आर.के. का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके आग्रह पर ये हम पंजाब में आए हैं। पंजाब आपका स्वागत करता है। थैंक यू। आज वैसे तो हमारी कल मीटिंग गुरदासपुर में 6, 7 और 8 का पठानकोट में प्रोग्राम रखा हुआ है। आज अचानक ही प्रोग्राम बन गया, चलो अभी आ रहे हैं। तो सुबह 8 बजे मेरी बात हुई, मैंने कहा कहाँ पहुँचे हो भाई? कहते लुधियाना। किसी से पूछा, सोए हुए थे,
कहते मैं तो अभी सहारनपुर में गाड़ी है। तो 1:30 बजे के करीब यहाँ पहुंचे, 2 बजे आए हैं। वो आते ही 4 बजे हमने यहाँ पे मीटिंग थी कुछ आज। इंद्र देवता की बहुत मेहरबानी रही है, कई लोग बरसात के कारण घर में बैठे रहे हैं। फिर भी हमारे चावला साहब जैसे जो लापरवाह करते हुए, जो कि हमारे पंजाब के चेयरमैन हैं, और प्रदीप जी हैं जो तरन में थे, प्रदीप शर्मा जी, वहाँ से वो भागे भागे आए हैं, क्योंकि ये मीडिया का प्रोग्राम सारा ये प्रदीप जी देखते हैं। और सबसे पहले मैं विलियम जी का थैंक्स करूँगा कि जो एक इन्होंने साफ सहेली का मुहिम बढ़ते कदम जो गुरदासपुर में शुरू किया था, बढ़ते बढ़ते होशियारपुर तक पहुंच गए हैं। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर से मिले हैं, होशियारपुर की मैडम जो डिप्टी कमिश्नर है उससे मिल के आए हैं। और ऐसे ही एक हमारे सीनियर सिटीजन की तरफ से भी हमारी कोशिश थी, हम भी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जहाँ पे भी मैडम है उनसे मिले हैं। तो यहाँ पे भी हेल्थ डिपार्टमेंट और जितने एजुकेशन जो अदारे हैं वहाँ पे हमारे को परमिशन मिल गई है। तो मैं विलियम जी को भी कहूँगा कि थोड़ी इस बारे हमारे को थोड़ा अमृतसर जो ग्रुप है हमारे, जो प्रदीप शर्मा जी है चला रहे हैं, उनको भी थोड़ा गाइड करके कभी कभार यहाँ पे वो मीटिंग जो आप गुरदासपुर का अपना एक्सपीरियंस है, जो होशियारपुर का एक्सपीरियंस है, वो ही साल में शेयर करें। कैसे ये हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके चलना है, और कैसे आशा वर्कर को साथ में जोड़ना है, और कैसे ये मुहिम को घर घर तक पहुंचाना है। तो जहां तक मैं कहूँगा, आरके जी ने बहुत अच्छी बात की है कि 1800 की आईडी के ऊपर आप काम करो। जो कुछ ज्यादा करना चाहते हैं उनके लिए भी है, बहुत कुछ है। आप 1800 पे शुरू करते हैं तो आप 6 महीने में 7 लाख तक पहुंच सकते हैं। जब भी आप ट्रायंगल शुरू कर देते हो, ऊपर भी आप, लेफ्ट भी आप, राइट भी आप, तो वही जो आपका वो 7 लाख है वो 14 लाख बन जाएगा आपका। वही जैसे टाइटेनियम हमारे बहुत है, विलियम जी ने टाइटेनियम के ऊपर काम किया है। ये पहले टाइटेनियम है गुरदासपुर के, फिर तेज जी भी साथ में है, और साथ में अपने डॉक्टर रफीक जी हैं, और मैडम हमारे क्या नाम उनका है, हाँ जी, वो सब मिलके काम कर रहे हैं। एक गुरदासपुर में मेरे और मित्र हैं, वो वही प्रदीप जी हैं, वो भी साथ में उनके वो अच्छी टीम बन गई है। तो मैंने तो कोशिश की है सबको जोड़ने की। इसी तरह अमृतसर में भी मैं सबको जोड़ रहा हूँ। भाई ये जो मुहिम है, और यहाँ पे भी साफ सहेली की मुहिम जो हमने यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट को सिविल सर्जन ने वो भी लेडीज है, उन्होंने भी बहुत अच्छी तारीफ की है। और यह मुहिम कैसे घर घर तक पहुँचाना है, यही हमारी कोशिश है। और 18 तारीख को ये आंखों का एक मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे हम उस दिन, क्योंकि उस दिन मेरा चंडीगढ़ जाने का प्रोग्राम है। कोई बात नहीं, आपका आप अटेंड करके फिर आगे जाएंगे। तो वही है जो 1,02,000 के ऊपर टाइटेनियम का कार्ड लेता है, जहां 7 लाख रुपए आना है उसको लगभग 32 लाख रुपए करीब आएगा। 800 और 1,02,000 जिसने लगाया, काम वही है, वर्किंग वही है, और किसी को मजबूर नहीं करना। जो किस लेवल में कर सकता है उसी को करो। जैसे आशा वर्कर है, आप उनको साथ में जोड़ो, एक एक 2-2 पैर से क्या होगा, उनको बोलो कि 800 पे लेके आप 6 महीने में ही 100% काम करो, तो आपके पास 7 लाख रुपए तो कहीं है नहीं है। 50% भी काम हो 3.5 लाख है, और 25% भी काम हो तो 1,75,000 है। तो इस तरह आपका काम भी बढ़ेगा और सिस्टम भी बढ़ेगा। और सैनिटरी पैड के साथ साथ आप जो जहां वो जाए, हर साल में होम प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर आगे जूस लोगों को बताओ। पहले खुद इस्तेमाल करो, देन यू शेयर। तो सभी का मैं धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। आप यहाँ पे आए हो, बाहर थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ते का है, वो सब लेके जाएंगे, उससे पहले कोई नहीं जाएगा। और फिर मैं एक बार अपने बारे में बताऊंगा। मैंने इसको ज्वाइन क्यों किया।
मेरा कुंदन ढाबा 1971 से मैं चला रहा हूँ, और 1980 से जो मैं होटल चला रहा हूँ। मेरी कोई, मैं कैटरिंग का 5 शादी होती थी यहाँ पे भी, नीचे भी। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था हेल्थ के ऊपर भी। गलतियाँ की हुई है पुरानी, रात को जैसे घर की जो लेडी होती है बुजुर्ग, वो बोलती सब बच्चे खा लेंगे, मैं बाद में खाऊंगी। यही मेरी थी। ढाबे में था मैं, रात को 11-12 बजे खाना खाना। होटल में आए तो यहाँ पे 2 बज गए। रेस्ट कभी होना, वो सब ऑलवेज खाना जो खाना है आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक या 12 बजे तक आप सुबह नाश्ता आप ले लें। मैं तो आजकल क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रूट ही खा रहा हूँ। 12 बजे तक मेरा नाश्ता फ्रूट का ही होता है। उसके बाद मोटा अनाज वो खाएं आप। उसके बाद 12 बजे के बाद जब भी आप खाना खाएं, एक बड़ प्लेट सलाद की खाएं। क्योंकि मेरे को दिक्कत आ गई 1918 में, मेरे को राइट किडनी में मेरा कैंसर निकला है। राइट किडनी मेरे को रिमूव करानी पड़ी, और यहाँ पे डॉक्टरों पे मेरे को विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा आयुर्वेदिक में मेरा ज़्यादा थी, और वहाँ पे वो बहुत अच्छे डॉक्टर मिले। एक डॉक्टर अडवाणी थे, वो 94 के थे, वो व्हील चेयर में जाते थे, पोलियो के वो थे पेशेंट, पर फिर भी उनकी वो कैंसर के बारे में उनकी बहुत अच्छी, पद्मश्री मिला हुआ था भारत सरकार से। तो मेरे को उनकी बहुत कुछ बातें इतनी नेगेटिविटी लगी कि मैंने कोकला बहन नर्सिंग होम से, वहाँ पे बॉम्बे में वो रिलायंस वालों का हॉस्पिटल, वहाँ से मैंने ऑपरेशन कराया। तो वहाँ पे डॉक्टर मेरे को मिले युवराज, उनका आज भी मैं हर 6 महीने के बाद मैं चेकअप करने जाता हूँ। मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, कोई मैं एलोपैथिक दवाई नहीं लेता हूँ, और सिर्फ खान पीन के ऊपर जैसे उनकी इंस्ट्रक्शन होती है वही है। ऑपरेशन के टाइम में जो मेडिसिन मेरे को दी है वो मेरे को मजबूरी थी मेरी, वो मैंने ली है। आप खाना पीना अच्छा रखें। 5 तत्वों से शरीर मिला है, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। इन चीजों को स्टेबल कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी अच्छा पियो आप। पानी आप जैसे कॉम्प्लीफोर ने दिया है, ये पानी, मैं तो ये पानी लेता हूँ, इसके ऊपर मेरा ये भी मैग्नेट वाटर, मैं 18 से मैंने शुरू किया, ये पानी मैं पीता हूँ। इसके ऊपर मैग्नेट में एक पैड है मेरा, वो लगा के लेता हूँ। पानी अच्छा लो, और फ्रूट लेना है, उसको सुबह पानी में अच्छी तरह सोडा डाल के धो लो, गर्म पानी से कैसे भी उसको धो के वो लो। सब्जी लेनी है दूसरी, वो सब अच्छी तरह ढंग से धो लो, तो वो खान पीन आप अच्छा रखोगे। और कोशिश करो कि 6 बजे से पहले खाना खा लो आप। जो 6 बजे के पहले खाना खा लेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी पटकेगी पास में डालने की। ये कुछ चीजें जरूरी है जिसके ऊपर आप चलोगे तो कोई आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हो। और इसलिए मैंने पोहे को, मेरे को ये मिले, बहुत मुश्किल से मिले मेरे को, मैं इनको मिला। इनके एक और थे जो भाई साहब लेके आए, पंजाब में एंट्री कराई है, तो उन्होंने मेरे को, उनकी हिम्मत, उसको मैंने अंदर आने के लिए मना किया हुआ है, मैं टांगे तोड़ दूंगा मेरे अंदर आया तो। फिर एक डॉक्टर बंसल थे, वो भी आयुर्वेदिक थे, मेरे जहाँ बैठते थे जहाँ पे, फिर वो इनको लेके आए, इनके साथ मुलाकात हुई, तो तभी से मैंने वो अपना सभी मैं प्रोडक्ट मैंने घर पे भी रखे हुए हैं, यहाँ पे भी रखे हैं। और मेरा शौक यही है कि आपको अच्छी सेहत दे, जो बेरोजगार बच्चे हैं वो उनको फ्यूचर दे, कि आप डॉक्टर बन के भी कुछ वो नहीं पा सकेंगे। आपको पास, मेरे पास ऐसे ऐसे डॉक्टर आए हैं शुगर के लिए, जिनकी खुद की 400 शुगर है, और 400-200 पेशेंट उनके पास लगे रहते हैं, उनको वॉशरूम में जाने की उनके पास फुर्सत नहीं है, इतना उनके है, पर फिर भी क्या फायदा उसका। कोई आज तक शुगर का कोई रिवर्स लेके नहीं आया। हम हैं जो आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी शुगर रिवर्स लेके आ सकते हैं। एलोपैथिक है, उसको चालू रखो, जो डॉक्टर दे रहा है। हमारा ये डेप्टी जो उन्होंने बोला है, वो साल में 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम को लो, खान पीन ठीक रखो, आपकी जो शुगर है बिल्कुल मेंटेन हो जाएगी। आयुर्वेदिक है, बीमारियां खत्म करती है जड़ से। आयुर्वेदिक बहुत कुछ है, होम्योपैथी में भी बहुत कुछ है।
एलोपैथी में सिर्फ है कि वो बीमार को ही तुम खत्म करती है। मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं पेशेंट देखा कि वो वहां पे गया हो। मेरे एक कजन मेरे है, वो चलते चलते तो अब हॉस्पिटल में गए हैं, मनमोहन कालिया। तो जब भी गए, वो अच्छे सिंगर भी थे, तो वो गए हैं वापस, वो मुर्दा ही आए हैं। ऐसे ही हमारे एक और हमारे बनोई थे, वो उनके पिताजी, वो भी प्रोफेसर थे, वो भी वो 40 में यहाँ पे गए हैं, पैदल गए हैं, आते समय बस डेड बॉडी ही मिली है। वो स्टिचिंग इस तरह की कर देते हैं, घर पे नहाने के वक्त भी लोगों को मुश्किल होती है, क्या कुछ क्या क्या नहीं है। तो अच्छी जिंदगी आप बसर करो, वो अच्छा खाओ। और फोए का मैं फैन हूँ, क्योंकि इसने मेरे को दुनिया दिखा दी है। जब भी मैंने ज्वाइन किया, मैं अभी आज किया, सबसे पहले मेरे को चाइना जाना पड़ा। चाइना में वहाँ पे वो देखा, वहाँ पे 25-30 हजार लोग वहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड के आए हुए थे, ग्लोबल। उसके बाद हांगकांग का मेरे को टूर आ गया, मेरा मुकाया का आ गया, इंडोनेशिया का आ गया। इतने टूर मेरे को घुमा दिए हैं। अभी थाईलैंड का टूर है, अभी बोलते नहीं जाना है, अभी कंपनी शायद मतलब कि वो नहीं है, तो वो भी मैंने सबसे करवा देने थे। विलियम तो बहुत रेडी था, अभी मैं आई एम रेडी। तो कोई बात नहीं, 1 महीना और ले लो, आगे टूर आपको देंगे, साथ चलूंगा, मैं आपकी अगुवाई करूंगा। और जिंदगी में आए हैं, मालूम होना चाहिए दुनिया कहाँ है, बाहर के लोग कैसे हैं, उनका खाना पीना कैसे है। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं जब भी हम कंपेयर करते हैं, यहाँ का खाना, हिंदुस्तान का खाना कहीं भी कुछ नहीं है। ये भी साल में हम एक ही रूम में रहते रहे हैं, लोग मेरे क्या साल में मेरे को देखने के लिए क्या कहते हैं, लुक आफ्टर, वो क्या ना, टेक वे, क्या केयर टेकर का काम किया है। हम यहाँ से परमल ले गए, चने ले गए, मूंगफली ले गए, सब डाल के उसका चरवा वही खाते रहे। चाइना में हमको ले गए, एक बहुत बढ़िया, जो जहाँ राजा महाराजा वो खाना खाते हैं, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी कंपनी प्रबंध किया। जब भी एंटर ही करें वहाँ पे, इतनी मच्छी की स्मेल, इतनी वहाँ पे नॉन वेज टंगे हुए हैं, बकरे टंगे हुए हैं, सब कुछ टंगे हुए हैं। तो कुछ भी हमने वहाँ पे नहीं लिया। जो नॉन वेज खाने वाले भी थे, वो भी उनको चीज पसंद नहीं आई। 50 तरह की उन्होंने मशरूम की आइटमें बना के हमारे आगे रख दी, उन्होंने बहुत बढ़िया। वो फिर हम मतलब वहाँ से निकले, जो इंडियन के जो बिजनेस देखते हैं पोहे का, वो राकेश शर्मा जी है, वो मेरे लिए फ्रूट लेके आए हुए थे। उनको भी मालूम है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, वो भी वेजिटेरियन है। वो कई बार चाइना का उनको एक्सपीरियंस था, वो उनके वो काम आया और मेरे वो काम आया। तो बाहर दुबई में गया, वहाँ पे खाने पीने की हमको इंडिया जैसे ही खाना मिला, बहुत बढ़िया खाना मिला है। सभी जगह गया, वो अच्छा लगता है। बाहर जाओ, दुनिया देखो। वो सिर्फ आप अपने पैसे में नहीं जा सकते, हम लाखों रुपया लगा के भी वो टूर नहीं दे सकते। जो हमने वहाँ पे देखा है, बसों में गए हैं, वहाँ पे घुमाया है, वहाँ के लोकेशन दिखाई है, और समय से नाश्ता, समय से लंच, समय से डिनर, और कंपनी की तरफ से बहुत आगे भी मैं गया हूँ। थाईलैंड में होके आया हूँ किसी और कंपनी के साथ, कुछ भी वो नहीं था जो पोहे में था। पैसा भी है, एंटरटेन भी है, और हेल्थ भी दुरुस्त रखो आप, और खाना पीना भी आप अपना ठीक से रखो, तो कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर मैं सीनियर सिटीजन भी आंदा, मैं भी उन्होंने हम हिस्सा बन चुका गल नहीं किया, और सब उसी मिलके अपना काम कर रहे हैं जी सारे नाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक वीडियो बनानी है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जनहित तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय 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 जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आजो पुलिस साहब, आजो सब आजो। एक छोटा सा लोगन है, पहले चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे खोए, चक दे इंडिया, चक दे खोए, चक दे इंडिया,
चल दे फोए वी आर रेडी, वी आर रेडी वी आर रेडी। वी आर रेडी जय हो, जय हो जय हो, जय हो जय हो